everyone and welcome to the second video of application of integrals. Today we are going to learn the same two steps with all these questions. So the question has become just a one step, tougher when you compare exercise 8.1 and 8.2. Let's talk about the first question. Can I rewrite that question as x square, the first circle equation, as x square plus y square is equal to 3 by 2 whole square, children, so that I come to know that how well the circle has to be planned. Suppose this is y1 and it is, you have to find the area interior to the circle and the parabola. So this is the parabola. So let's take this as y2. So first of all, we will draw a circle whose radius is 3 by 2, right children? So let me draw a circle whose radius is 3 by 2. And so this point will basically be 3 by 2. Okay. And then we are going to draw a parabola who is symmetrical towards y-axis. So parabola will be something like this. And now when you talk about the inner area, so this will be the shaded area, right children? This complete in yellow will be the shaded area. So for finding out the shaded area, first step is we should know the point of intersection. Now for the point of intersection, I am putting the value of y from this equation here. So x square plus, in place of this, or I can also take the value of y and then find out. It is your wish, but since mostly x की units ही use हो रहे हैं, हम area with respect to x कर रहे हैं, तो that is why I am replacing y, right? This is 9 by 4. So x square plus x to the power 4, if I take the LCM, so this is 16. So 16x square plus x to the power 4 equals to 9 4s are 36. So if I assume x square as u, so my quadratic equation will be u square plus 16u minus 36 is equal to 0. Right children? Now you can find out the factors. 36 के factors ताकि 16 आए. So can I say 18 into 2 is 36? And 18 minus 2 is this also. So we get the value of u So I get u as 2 and u as minus 18. तो नेगेटिव 18 तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ डालूंगी तो अंडर रूट ऑफ नेगेटिव हो जाएगा, तो जो कि नॉट पॉसिबल. सो x इज अंडर रूट ऑफ 2, राइट चिल्ड्रन? सो अंडर रूट 2 आप निकाल ही सकते हो. So it will be plus minus, right? Now next step is, from this just draw a perpendicular from the point of intersection. So this is minus root 2 and this is plus root 2. Now if you want to find the area, can I say children, area is, now please have a look at my pointer. If I move, I can do in the first quadrant में जो भी area into 2 कर सकती हूँ, क्योंकि same area इधर भी है, right? In the fourth quadrant also. So if I have to calculate area, check here children. 0 to root 2. Limit is 0 to root 2. Check out. Can I say it is circle का area minus parabola के area, क्योंकि ये white portion मुझे नहीं चाहिए. So it will be circle minus parabola. Put the value. So circle is, value of y will be under root of 9 by 4 minus x square minus value of, again you can apply the formula of under root of a square minus x square here and integrate, and then you can put the limits. Alright children, this is how you will do question number 2.
Let's move on to the next question. Sorry, question number 1. That was question number 1. Let's move on to the next question, question number 2. First is again very clear from the figure. ये सर्कल है जिसका सेंटर दिख रहा है आपको, राइट? सेंटर इज 1,0 एंड रेडियस इज 1. x square plus y square is equal to 1 is also a circle with center 0 and radius 1. So let me take this as y2. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. अगेन सेम वे से निकल जाएगा. वाई स्क्वायर की वैल्यू वहाँ डाल देते हैं. तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर. वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ 2 से आई. 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1. जस्ट ओपन द ब्रैकेट. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया. So 2x is equal to, here ये भी cancel हो गया, 2x is equal to 1. So x is half. So this is point of intersection. So if I have to draw the figure, let me see how our both the circles will look like. Okay, एक circle जिसका center 0 है, that is this, and radii suppose इसको मैं 1 ले लेती हूँ. So एक ये सर्कल बन गया और दूसरा सर्कल का जो सेंटर है वो 1,0 है. So it will be something like this, the other circle, and obviously इसका भी radii 1 था तो ये 0.2 हो गया. और अब आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो क्लियरली दिख ही रहा है. परपेंडिकुलर फॉल करा लो. The line has to be straight, okay children, so don't worry. So point of intersection was half. So now we have to find again this shaded area. Let me just use a highlighter so this is the shaded area, children, which we have to find out enclosed between the two circles. Now let's find out. Let's check. जब मैं यहाँ से यहाँ मूव करूँगी तो मेरा ये वाले सर्कल यानी कि y2 वाले इक्वेशन यूज हो रही है फ्रॉम 0 टू हाफ. एंड जब मैं हाफ से 1 पे मूव करूँगी ऐसे तो मेरा ये वाले सर्कल की इक्वेशन यूज हो रही है यानी कि y1. तो चेक करिए एरिया क्या होगा. अगेन ट्वाइस आएगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना एरिया है उतना ही नीचे भी शेडेड है, राइट? सो ट्वाइस ऑफ, चेक करो. पहली लिमिट लेते हैं 0 टू हाफ. जब मैंने 0 टू हाफ लिमिट ली तो मेरे पास y2 सर्कल की इक्वेशन आनी चाहिए, राइट? प्लस जब मैंने हाफ से 1 लिमिट लिया, हाफ से 1, तो मेरे पास कौन से सर्कल की इक्वेशन आनी चाहिए? y1 की. सो अगेन ये पूरा इंटू ट्वाइस है. सो आपको अगेन आंसर आता ही है. ट्वाइस ऑफ 0 टू हाफ y2 का अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. सेम फॉर्मूला प्लस हाफ टू 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर and obviously dx. So now you can integrate using the same formula under root of a square minus x square and then put the limit. That was question number 2 for you. Let's move on to question number 3. Question number 3. y equal to x square plus 2. So एक की डिग्री 2 है, दूसरे की डिग्री 1 है, यानी कि बनेगा तो पैराबोला. लेकिन चेक करिए जो पैराबोला है वो ओरिजिन पे स्टार्ट नहीं करता है. कैसे? अगर मैं x को 0 डालूं, if I put x when x is 0, y is coming out to be 2. That means the parabola is starting from this point and it is symmetrical towards. So this is how your parabola will look like. ओके अभी तक हमने इससे पहले क्वेश्चन में जितने भी पढ़े थे वो स्टैंडर्ड पैराबोला थे, यानी कि उसका वर्टेक्स 0 से स्टार्ट होता था, लेकिन इसका वर्टेक्स 0 से स्टार्ट होता है. सो दैट्स द फर्स्ट चेंज विच यू हैव सीन. सपोज दिस इज y1, देन देर इज अ लाइन.
y इज इक्वल टू x, y2। लाइन को अगेन तुम्हें प्लॉट करना आता ही है, x is 0, y is 0, x is 1, y is 1, तो 0 0 एंड 1 1। सो ये आपकी लाइन प्लॉट हो गई। चेक करो, आपको यहीं से पता चल जाएगा कि जो लाइन है वो पैराबोला के साथ कहीं पे भी मीट नहीं करेगी। राइट चिल्ड्रन? और अगर आपको चेक करना है तो आप कर भी सकते हो। Can I say by equating the two equation x is equal to x square plus 2, तो चेक करो, x square minus x plus 2 is equal to 0 is not factorizable. So therefore line and parabola do not intersect. Let's move ahead. x is equal to 0, x is equal to 0 की तो कोई टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। x is equal to 0 means y axis, राइट ये वाली लाइन। एंड x इज इक्वल टू, अगला क्या है, x इज इक्वल टू 3। ये हम लाइन प्लॉट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 3। सो दिस I'm sorry, this will meet the parabola at some point. So let me take this, let me say that the parabola will meet at some point. Okay, it's very clear. So this is x is equal to 3, this line is x is equal to 0, this line, this is x is equal to, I'm sorry, this is x is equal to 3 and this is x is equal to y, one line, and this is parabola. So you can see children, shaded area बहुत clearly दिख रहा है between all these points. So this is the shaded area. अब अगेन बहुत क्लियर, आपको क्लियर कट ये भी दिखेगा कि कैसे हमें एरिया फाइंड करना है। सो कैन आई से एरिया इज फ्रॉम 0 to 3, लिमिट तो मुझे दिख ही रही है 0 से 3 तक। चेक करो, अगर मैं पैराबोला का एरिया लेती हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस तो वो ये पूरा आएगा जो मैंने शेड किया है। सो पैराबोला माइनस, चेक करिए, लाइन आएगा, लाइन का एरिया विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस इज दिस वाइट पोर्शन, और ये वाइट पोर्शन मुझे नहीं चाहिए। सो इट विल बी पैराबोला माइनस लाइन। सो 0 to 3 इक्वेशन ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर माइनस 2 वाई की वैल्यू और लाइन में से माइनस एक्स dx, and obviously limits are same from 0 to 3. That is third question for you. Now question number 4 and 5 are similar but little change. Let me show you the change. हमें इसमें अब 3 vertices given है। सबसे पहले हम तीनों vertices का name दे देते हैं and अब इसे plot करके देखते हैं कि क्या आएगा हमारे पास। Okay, so this is, let me just take the pencil. This is 0, 1, 2, 3. This is also 1, 2, 3. This is minus 1. बस इतना ही चाहिए. So this is A point, minus 1, 0. B is 1, 3. And C is 3, 2. Let's join. ये मेरा ट्राइंगल आ गया। अब मुझे यूजिंग इंटीग्रेशन इसका जो अंदर का एरिया है वो फाइंड करना है, ये एरिया, राइट? ऑल राइट, लेट्स जस्ट ड्रॉप अ परपेंडिकुलर, वो तो आपको क्लियरली दिख ही जाएगा। अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं 1 और 2
तीसरा प्लॉट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ये पॉइंट ऑलरेडी -1 गिवन है. सो दिस इज बेसिकली द थर्ड वाला परपेंडिकुलर. ओके, नाउ लेट्स मूव. अगर मुझे यूजिंग इंटीग्रेशन करना है तो मेरे पास ए बी बी सी और ए सी की इक्वेशन होनी चाहिए. सो आई होप यू रिमेंबर 2 पॉइंट फॉर्म विच यू हैव स्टडीड इन क्लास 11th. y2 minus y1, sorry, y minus y1, just 1 minute. Equation is 2-point form, y minus y1 upon x minus x1, y2 minus y1 upon x2 minus x1. This is the 2-point form equation, children. So let's find out AB first, equation of AB. So y minus y1, this is y1, x minus x1, this is x1, is equal to y2, मतलब b के coordinates, y2 minus y1 upon x2 minus x1. So check करिए y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2 x plus 1. I will show you why I am taking the value of y. Similarly आप BC फाइंड कर लीजिए, y minus y1 upon x minus x1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. So y minus 3 is equal to, this is -1/2 x minus 1. चिल्ड्रन थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं और y की वैल्यू निकाल लेते हैं. -1/2 x प्लस हाफ मल्टीप्लाई प्लस 3. सो यानी कि इक्वेशन आ गई 6 y is equal to -1/2 प्लस 3 to the 6, 6 plus 1 7/2. ये मेरी सेकेंड इक्वेशन आ गई. सिमिलरली अगली CA निकाल लेते हैं, y minus y1 x minus x1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. So again y आ गया 2/4 यानी कि 1/2. ये मेरी थर्ड इक्वेशन आ गई. अब आप चेक करिए कि हाउ द एरिया हैज़ टू बी फाउंड आउट. कैन आई से शेडेड एरिया, जो येलो पोर्शन है, चेक करो मेरा पॉइंटर कैसे मूव कर रहा है. अगर मैं ए बी की इक्वेशन लूँ चिल्ड्रन, तो मेरा जो लिमिट्स है वो -1 से 1 तक आएगा, चेक कर लो, राइट. अगर मैं बी सी लूँ, बी सी का लिमिट्स 1 से 3 आएगा, बी सी डी एक्स. एंड और मुझे ए सी नहीं चाहिए, ये वाइट पोर्शन नहीं चाहिए. सो मैं माइनस कर दूंगी एरिया ऑफ ए सी फ्रॉम -1 till 3. एंड नाउ यू नो हाउ टू पुट द वैल्यूज. -1 से 1 ए बी मतलब y की वैल्यू यानी कि 3/2 x plus 1. सो हियर चिल्ड्रन चेक, आई हैव सेव्ड ऑन टाइम. मैंने पहले ही सिर्फ y की वैल्यू निकाली थी तीनों में, ताकि मेरा टाइम सेव हो जाए, मुझे इक्वेशंस को बार बार रीअरेंज ना करना पड़े, राइट. सो प्लस 1 से 3 बी सी की इक्वेशन यानी कि -1/2 x plus 7/2, right, dx. And similarly minus AC की equation which is half of x plus 1 dx. Limit is from -1 to 3. So you can get the area. All right. So I have already taught you time saving trick कि पहले ही y की वैल्यू ही निकालना डायरेक्टली. अब क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 एक दूसरे से थोड़े से मिलते जुलते हैं, लेकिन देखो चेंज क्या है. पहले वाले में हमें वर्टिसेस गिवन थे, हमें इक्वेशन निकालनी थी. अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इक्वेशन दे दी है इसने. सपोज ये ए बी, ये ए सी, सपोज ये y1 है, ये y2 है, एंड x इज इक्वल टू 4. सपोज ये बी सी है, y3. अब चेक करो, सबसे पहले इंटरसेक्शन निकालना है. मतलब अगर मैं
सॉल्व करूंगी ए बी एंड बी सी को चिल्ड्रन, कॉमन पॉइंट देख रहे हो ना क्या है, बी, मेरे पास बी आएगा, तो एक्स तो 4 है ही, एक्स को 4 यहाँ पुट कर दो, तो 4 2 8, 8 + 1 9, यानी कि बी कोऑर्डिनेट आ गया ये। सिमिलरली अगर मैं बी सी एंड ए सी को सॉल्व करूंगी तो मेरे पास सी आएगा, कॉमन पॉइंट सी है, तो सी के कोऑर्डिनेट्स अगेन एक्स इज 4 एंड वाई इज 4 3 12, 12 + 1 13। और अगर मैं ए बी एंड ए सी को सॉल्व करूंगी, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं इक्वेट कर लेती हूँ, चेक करो, तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये उधर चला गया और ये उधर, x की वैल्यू 0 आ गई। अगर x 0 है तो मेरे पास y क्या आ जाएगा, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो y 1 आ गया, यानी कि ए बी और ए सी को सॉल्व करके मेरे पास a पॉइंट आ गया 0,1। अगेन आपको प्लॉटिंग आती है, मैं एक रफ सा फिगर बना के दिखा देती हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। आपका a पॉइंट है 0 1, सो दिस इज a 0 1। आपका B पॉइंट है 4 9, यहाँ पे कहीं सपोज करो, यहाँ पे ले लेते हैं 4 9, और आपका C पॉइंट है 4 13, वो कहीं और ऊपर होगा लेकिन होगा इसी स्ट्रेट लाइन में, राइट, दिस इज 4 13, ये B है और ये C है। अब आप चेक कर लो, जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको क्लियरली अगेन दिख जाएगा, ये आप परपेंडिकुलर फॉल करा लिया आपने, ये आपका 4 है पॉइंट, और ये पॉइंट जो है वो 0 है। चेक करो, लिमिट्स दिख रही है 0 to 4, ए सी माइनस ए बी आ गया, चेक कर लीजिए। सो एरिया शेडेड, ये जो एरिया शेडेड होगा, ये जो ट्राइंगल होगा वो कैसे आएगा, ए सी का एरिया माइनस ए बी का एरिया। सो आपको ए सी मतलब 0 to 4, AC is 3x plus 1 minus AB is 2x plus 1 dx, and you can find out the area. That's how you will find out this. Question number 5 for you. Similarly 6 भी आप directly कर सकते हो, एक सर्कल जिसका रेडियस 2 है, again I'm just drawing a rough figure, circle with radius 2 will look something like this, and next one is a line, x plus y is equal to 2। अगर मैं प्लॉट करूं x 0 y 2 y 0 x 2, right? So this is one point, सर्कल का रेडियस 2 था, तो एक लाइन जो है वो 2, लाइन का पॉइंट जो है वो 2,0 से पास कर रहा है और दूसरा 0,2, सो मीन्स कुछ ऐसी लाइन आएगी। एंड यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन, तो वो दिख रहा है। अगेन अगर आप कंपास पॉइंटर मूव करना, ये 0 लिमिट है, चेक करो अगर मैं ये पॉइंटर मूव कर रही हूँ, पहले सर्कल का एरिया, सपोज ये y1 है, ये y2 है, सो शेडेड एरिया y1 माइनस y2 आया। चेक करो सर्कल में से अगर मैं ये लाइन का एरिया, ये ट्राइंगल पोर्शन हटा दूँ वाइट वाला, तो मेरे पास शेडेड एरिया आ जाएगा dx, एंड लिमिट मुझे दिखी नहीं है 0 to 2 जब मेरी पेंसिल मूव कर रही है, तो दैट्स इट, पुट द वैल्यू। सो 0 to 2 अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से माइनस वाई की वैल्यू जो कि 2 माइनस एक्स है dx, just integrate. Similarly you can find out the answer. Similarly for this, it is a parabola symmetrical towards x axis and passing through 0 0। आप हमेशा चेक कर लेना बेटा पैराबोला 0 से पास करता है कि नहीं, x को 0 पुट करो तो y भी 0 आना चाहिए, एंड x is equal to 2, y is equal to 2x is a line, right? So y is equal to 2x, again एक ऐसी लाइन जो ओरिजिन से पास करेगी, और एक और पॉइंट ले लेते हैं, x की वैल्यू 1 y2, एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी इसमें निकालना पड़ेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये फर्स्ट है y1 और ये y2 है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं,
Can I say 2x का full square is equal to 4x आएगा? So 4x square minus 4x equals to 0. So x, 4x common, x minus 1. So x is equal to 0 and x is equal to 1. मतलब एक यहाँ और एक कहीं x is equal to 1 ऐसे करके कहीं वो लाइन आएगी. And you have to find this shaded area. Again आपको बहुत clearly दिख जाएगा. That is parabola minus line. And limit again दिख ही रही है 0 से लेकर 1 तक. So यहाँ पे गलती होने के क्या चांसेस हैं? बहुत बच्चे यहाँ पे 4x स्क्वायर इक्वल टू 4x लिख के 4 से 4 और x से x को काट देते हैं और जनरली वो x का आंसर एक ही लिखते हैं. लेकिन ये एक आंसर नहीं आएगा. आपको याद रखना है, आपको इक्वेशन को फैक्टराइज करना है, उसे कैंसिल आउट नहीं करना. सिंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दो फैक्टर्स आपको निकालने पड़ेंगे. वो अलग बात है कि दोनों फैक्टर्स सेम आ जाए या नहीं आए, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, बट यू हैव टू फाइंड इट आउट. So that is the mistake. And so 0 to 1 by 1, that is parabola. So under root 4x minus 2x dx. That is it. Just integrate and get the answer. We'll continue with the miscellaneous exercise in the next video, but still if you have any doubt, you can always post the comment. Stay